हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज मैं साइंटिफिक स्टेटमेंट्स लेकर आई हूं जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस कंटेंट में मैंने शामिल किया है, इंग्लिश में ये वीडियो है, हिंदी में भी इसकी वीडियो मैंने बनाया है। तो जिस किसी को हिंदी में चाहिए तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चिल्ड्रन एक्टिवली बिल्ड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू डैश कोहेलबर्ग, स्किनर, पियागेट एंड पैवलोव। तो चिल्ड्रन एक्टिवली बिल्ड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, खुद ही तैयार करते, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? So this statement belongs to Piaget. Question number 2. Educational psychology is a systematic study of educational development. This definition of educational psychology was given by Skinner, Dalton, J.M. Stephen और C.H. Jude. So this definition of educational psychology was given by J.M. Stephen. So right answer option C. Question number 3. Which method was propounded by Kilpatrick? Project, Dalton, problem solving और none? तो problem solving method was propounded by Kilpatrick. Question number 4. Who gave the 3 language formula? Radhakrishnan Commission, मुदालियर कमीशन, बेसिक एजुकेशन कमेटी और क्लोजेट कमीशन। तो राधा कृष्णन कमीशन gave the 3 language formula. Question number 5, which is not an actively of pre-active phase, determining goals or objectives, content selection, instructional method और starting teaching। तो एक्टिवली और प्री एक्टिव फेज नहीं है। सो स्टार्टिंग टीचिंग इज नॉट एन एक्टिवली एंड प्री एक्टिव फेज। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस ग्रेड सिस्टम इन एजुकेशन टू इंक्रीज टीचर इफेक्टिवनेस? फ्लैंडर, रेओन, एमिडन एंड सिमोन एंड रिचर्ड ओवर। So, Flander developed the interaction analysis grade system in education to increase teacher effectiveness. Question number 7. An important theory of moral development has been proposed by Lawrence Kohlberg, Eric Fromm, Daniel Coleman और Benjamin Bloom. So, important theory of moral development has been proposed by Lawrence Kohlberg. तो moral development की थ्योरी, important theory को लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रपोज किया गया है। So, right answer option A. Question number 8. The father of psychoanalysis is Eric H. Erikson, Ian Piaget, Jorin S. Brunner और सिगमुंड फ्रीड। तो साइको एनालिसिस के फादर कौन है? सो एरिक एच एरिक्सन इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ओके, ये राइट रॉन्ग हो गया। तो सिगमुंड फ्रीड है जो साइको एनालिसिस के फादर है। सॉरी फ्रेंड्स। Question number 9. The exponent of cognitive theory of teaching is N.L. Gog, Shiv Kumar Mitra, B.F. Skinner और McDonald's. So the exponent of cognitive theory of teaching is N.L.
गेग। Question number 10. Computer-based learning model has been developed by Gilbert 1962, Stoluro and Davis 1965, Robert Ganj 1965 and मैकनर 1965। तो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग मॉडल को किसने डेवलप किया था? सो स्टोलुरा एंड डेविस द्वारा 1965 में कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग मॉडल को डेवलप किया गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। Question number 11. Man is born free, but everywhere he is bound in chains. This statement has been given by Abraham Maslow, Jean-Jacques Rousseau, John Dewey, and W.I.I. Kilpatrick. So man is born free, but everywhere he is bound in chains. This statement has been given by Jean-Jacques Rousseau. यह स्टेटमेंट जीन जैकस रूसो द्वारा दिया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12. टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेनिंग, हुज स्टेटमेंट इज बर्टन, स्कीनर, बैन एंड नन ऑफ दीज। So teaching is also called training. Statement is Bain. So Bain ने ये statement किया था कि teaching is also called training. Question number 13. Schedule is a formal list, catalog or list of information. Whose statement is it? Webster, Cattell, Rorsa or Rousseau? So this statement is given by Webster. So right answer option A. Question number 14. Incomplete sentence test is the contribute of Rotor, Cattell, Webster and Rousseau. तो इनकम्प्लीट सेंटेंस जो टेस्ट होता है उसे कंट्रीब्यूशन हुआ है रोटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15. The author of psychological testing is Freeman, Guilford, Cranchbitch and Anastasi. तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऑथर कौन है? अनस्तसी इज द ऑथर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 16. इट मीन्स दिस इज मिसिंग, होप ये मिसिंग है फिर से। Question number 17. Who first used the oral examination? Cattell, Gladius, Webster और Ras. तो oral examination को सबसे पहले यूज़ किसने किया था? So Gladius is first used the oral examination. So right answer option B. Question number 18. Test is a test or questionnaire or any kind of device or method for measuring ability, performance or achievement, interest, etc. Whose statement is C.B. Good, Wessler, Cattell or none of these? G.B. Good, C.B. Good, ये स्पेलिंग G-O-D होगा, डबल ओ नहीं होगा। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय C.B. Good. So right answer option A. Question number 19. Who is credited with introducing Dalton method of teaching? Dr. Dalton, Parkhurst, Kilpatrick and Pestalozzi. So Parkhurst is credited with introduction Dalton method of teaching. So right answer option B. Question number 20. Whose name is notable in the field of education system for the deaf? तो बहरों के क्षेत्रों में एजुकेशनल सिस्टम को नोटेबल करने वाले पर्सन का क्या नाम है? एनी बेसेंट, मारिया मोंटेसरी, विलियम जोन्स एंड हेलन केलर।
So Helen Keller is a notable in the field of educational system for the deaf. Question number 21. Who was the originator of the ideology of pragmatism in education? Kilpatrick, Pastology, William James and John Dewey. तो एजुकेशन के प्रैग्मेटिज्म को आइडियोलॉजी करने वाले ऑरिजिनेटर को क्या कहेंगे, कौन है वो? सो विलियम जेम्स was the originator of the ideology of pragmatism in education. So right answer option C. Question number 22. Which scholar gave 5 stages of learning? Froebel, Herbert, Plato and Commune. तो किस स्कॉलर ने लर्निंग के 5 स्टेजेस बताया है? So Herbert gives 5 stages of learning. Question number 23. Who among the following said motivation is the art of generating interest in the student? Thompson, Rabindranath Tagore, Macaulay and Kothari. तो मोटिवेशन एक आर्ट है जो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट को जनरेट करता है. ये किसने कहा है? सो थॉमसन said motivation is the art of generating interest in student. So right answer option A. Question number 24. Who was a great supporter of women's education in India? Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Karve एंड औरोबिंदो. तो वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले ग्रेट सपोर्टर इंडिया में कौन है? सो कार्वे वॉज ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया. तो वुमेन्स के एजुकेशन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते कार्वे ने किया है. क्वेश्चन नंबर 25. हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन ऑरिजिनेटर ऑफ साइकोएनालिटिक ideology? Karan Horney, Thorndike, Froebel and Sigmund Freud. So psychoanalytic ideology के मेन ऑरिजिनेटर कौन है? So Sigmund Freud is considered to be the main originator of psychoanalytic ideology. So right answer option D. Question number 26. Which scholar said that the brain of a child is a blank slate? Rousseau, Plato, Adler and Butler. तो बच्चे का ब्रेन ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ये किस स्कॉलर ने कहा है? So Plato said that the brain of a child is a blank slate. Question number 27. The most important element in the field of education is attitude. Whose idea was it? Rousseau, Maria Montessori and McDougall or T.P. Nunn. तो एजुकेशन के फील्ड में सबसे मोस्ट एलिमेंट होता है एप्टीट्यूड. तो ये आइडिया किसका है? सो टीपी नन ने ये कहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज एप्टीट्यूड. तो ये आइडिया टीपी नन का है. सो राइट आंसर ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 28. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? हर्बर्ट, स्पेंसर, पेस्टोलॉजी और डीवे. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है? सो हर्बर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो राइट आंसर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 29.
There should be no difference between the words and dates of the teacher. Whose statement is this? Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Zakir Hussain and Madan Mohan Malviya. तो टीचर के वर्ड्स और कर्तव्य डेट्स में करना में कोई अंतर नहीं होता है. ये किसका स्टेटमेंट है? सो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है. देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन होना चाहिए वर्ड्स एंड डेट्स ऑफ द टीचर. ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 30. द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय टॉलमैन, बंद्यूरा, थॉर्नडाइक एंड कोहलेर. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को के कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? So the concept of observational learning was given by Bandura. So right answer option B. Question number 31. The law of effect in learning was given by Pavlov, Skinner, Watson and Thorndike. So the law of effect in learning was given by Thorndike. तो लर्निंग के जो लो इफेक्ट मतलब जो लर्निंग में इफेक्ट डाला गया उस लो को किसने कहा है? तो थॉर्नडाइक द्वारा ये दिया गया है. सो राइट आंसर ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 32. थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट TT was developed by Simond, Holtzman, Murray and Belek. The thematic perception test was developed by Murray. Murray was developed thematic perception test. So right answer option C. Question number 33. Introvert, extrovert and bisexual type of personality are classified as creature, rust, subdan and stranger. तो इंट्रोवर्ट को, एक्सट्रोवर्ट को एंड बाइसेक्सुअल टाइप्स पर्सनालिटी को किस चीज़ में क्लासिफाइड किया गया है? तो रस्ट में इसे क्लासिफाइड किया गया है. सो राइट आंसर ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 34. स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज प्रपोज्ड बाय वॉटसन, कोफ्का, कोहलेर एंड जेस्टासन साइकोलॉजिस्ट. So a stimulus organism and response is proposed by Watson. So right answer option A. Question number 35. The field theory of psychology was given by Kurt Lewin, C.T. Morgan, Leon Festinger and Henry Goddard. साइकोलॉजी के थ्योरी फील्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? सो कर्ट लेविन जो दिए हैं द फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी. सो राइट आंसर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 36. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड बिनेट, होवर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गैल्टन एंड B.S. ब्लूम. तो हु वॉज डेवलप्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? होवर्ड गार्डनर was developed multiple intelligence theory. So right answer option B. Question number 37. The child is a book which the teacher has to learn page by page. Who says above? Plato, Aristotle, Rousseau और रोज. तो चाइल्ड एक बुक है जिसे टीचर को पेज बाय पेज लर्न करना होगा, सीखना होगा. तो ये किसका स्टेटमेंट है? So Rousseau was said that the child is a book which the teacher has to learn page by page. Question number 38. Children whose IQ quotient is above IQ 140 will be classified in the category of fool, sluggish, average and talent. IQ it means intelligence quotient. जो
बच्चे का IQ 147 होता है, उसे किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाएगा? सो टैलेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल रिजल्ट्स। हु सेड द अबव स्टेटमेंट? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रोस एंड स्कीनर। तो क्रिएटिविटी एक मेंटल प्रोसेस है जो ओरिजिनल रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो क्रो एंड क्रो। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रायल एंड एरर हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक, मैकडॉगल, कोहलर एंड पेवलव। तो ट्रायल एंड एरर के प्रिंसिपल को किसने प्रोपाउंड किया है? सो थॉर्नडाइक has propounded principle of trial and error. Question number 41, memory is the direct use of what is learned. Who said the above statement? McDougall, Woodworth, Ross and Drever. तो मेमोरी का डायरेक्ट यूज़ सीखने में होता है, ये किसका स्टेटमेंट है? सो वुडवर्थ has said that the memory is a direct use of what is learned. So right answer option B. Question number 42, thinking is a mental activity in its cognitive aspect. Whose definition of thinking is this? Warren, Ross, Valentines and Skinner. तो थिंकिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट। थिंकिंग एक मेंटल एक्टिविटी है जो कॉग्निटिव मतलब ज्ञान से रिलेटेड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होता है। तो ये इस तरह का थिंकिंग किसका है? सो रोस। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोजेक्ट मेथड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय डुर्खिम, प्लेटो, किल्पाट्रिक एंड सोक्रेट्स। तो प्रोजेक्ट मेथड इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है? सो किल्पाट्रिक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट मेथड। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, द गिफ्टेड चाइल्ड इज वन हु इज डिस्टिंग्विश्ड इन हिज प्रोडक्शन, रेट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय टर्मन एंड ऑडेन, कैरोल एंड मार्टन्स, R.W. टेलर एंड नन ऑफ दीज। तो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वह होते हैं जो अपने उनके जो प्रोडक्शन होते हैं उससे अलग होते हैं, उसके रेट और क्वालिटी ऑफ वर्क से अलग होते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? सो टर्मन एंड ऑडेन इज स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 45, द रिलेशन ऑफ स्कीनर टू रेट्स एंड थॉर्नडाइक टू केट्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोहलर, डॉग्स, चिकन्स, मंकी एंड चिंपैंजी। तो स्कीनर के रिलेशन को रेट्स से बताया गया है और थॉर्नडाइक का केट से। उसी तरह कोहलर का रिलेशन किससे है? तो उसे चिंपैंजी से सिमिलर बताया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, द राइटिंग ऑफ द बुक जेविस बिहेवियर इज स्कीनर, किल्पाट्रिक, पेवलव एंड थॉर्नडाइक। तो जीवास बिहेवियर के बुक के राइटर कौन है? सो स्कीनर इज अ राइटर ऑफ बुक जीवास बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल ग्रेडियंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? हल, किल्पाट्रिक, पेवलव एंड थॉर्नडाइक। तो गोल ग्रेडियंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्सेप्ट है वो प्रोपाउंड किसके द्वारा किया गया है? तो हल के द्वारा यह कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, वी लर्न बाय डूइंग। हु सेड? योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेज एंड कॉलेस्निक। काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम्स हैं।
सो वी लर्न बाय डूइंग, सिम्पसन हैज सेड कि वी लर्न बाय डूइंग, तो हम कर कर सीखते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम? फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, कुक एंड डाल्टन। तो किंडरगार्टन सिस्टम को किसके द्वारा फाउंड किया गया है? फ्रेंड्स, पहले किंडरगार्टन बच्चों के लिए जो स्कूल होते थे उन्हें किंडरगार्टन कहा जाता था, स्पेशली फॉर चाइल्ड एजुकेशन के लिए होता था वो। तो फ्रॉबेल was the founder of kindergarten system. Question number 50. The exponent of group counseling is Thorne, Rogers, Williamson and none of these. तो ग्रुप काउंसलिंग के एक्सपोनेंट कौन थे? So Williamson is the exponent of group counseling. So right answer option C. Question number 51. The fact that children require culturally relevant knowledge and skills is attributed to Charles Darwin, B.F. Skinner, Yuri Bronfenbrenner and Lev Vygotsky. तो फैक्ट क्या है कि चिल्ड्रन रिक्वायर्स कल्चरली रेलेवेंट उपयुक्त नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड। तो किसने कहा था ये चीज़? सो लेव वाइगोट्स्की के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? कर्ट लेवाइन, B.F. स्कीनर, रॉगर्स एंड थॉर्न। सो कर्ट लेवाइन इज द फाउंडिंग फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। Question number 53. The father of modern management is Henry Fayol, B.F. Skinner, Yuri Bronfenbrenner and Lev Vygotsky. तो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है? सो हेनरी फेयोल इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग अदर्स टू वर्क ऑफ द स्टेटमेंट हल, किल्पाट्रिक, पेवलव एंड हैरल्ड कोंच। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है जो दूसरों से काम करवाना होता है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? सो हैरल्ड कोंटच के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55. द टर्म एम्प्लॉयमेंट सेंटर वॉज यूज्ड इन प्रोडक्शन सेंटर टू डिस्क्राइब लीडर बिहेवियर? टर्मन एंड ऑर्डन, कैरल एंड मार्टिन्स, लाइकर्ट एंड पेवलव। तो टर्म है जो एम्प्लॉयमेंट सेंटर जिसे यूज़ किया गया है प्रोडक्शन सेंटर के लिए, तो किस लीडर के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है? सो लिकर्ट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 55 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।